Dear students, welcome in maths lesson. Today my topic is trigonometric identities. Exercise number 8.4, and this is about trigonometric identities. What do you mean by identity? Identity किसे कहते हैं? Identity is a simple equation. Identity एक equation होती है, and this equation is true for all the variables, like a plus b whole square equals to a square plus 2ab plus b square. This is true for two variables, a and b, for all the values for a and b. These are the variables. This is also identity. मोटे तौर पर कहने का यह अर्थ हुआ कि आइडेंटिटीज इक्वेशंस होती हैं और वो सारी इक्वेशंस उनके अंदर जो वेरिएबल्स हैं, इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स हैं, उनके इक्वेशंस के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनके सबके लिए वो ट्रू होती है. आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन सी होंगी? जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें इंक्लूड हो, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ रहा हो. एक्स वाई अगर इक्वेशन में आ जाता है तो वो हमारी सिंपल आइडेंटिटी बनी, या ए बी आ गया. लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उस इक्वेशन के अंदर आ रहा है तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहलाती हैं. अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जब हमने टॉपिक शुरू किया था, एक्सरसाइज 8 शुरू की थी, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप जानते हैं. व्हाट आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज: साइन ए, cos a, tan a, and cot a, and sec a, and cosec a. These are the 6 trigonometric ratios. If we make equations including these trigonometric ratios, you find trigonometric identities. देखिए, बात करते हैं इनकी. हमारी जो सबसे पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1. Can we prove it? Yes, obviously we can prove it. Proof of this identity is very, very, very simple. For this, you can draw a right angle triangle, because sin A and cos A are given. You can take here A, this is angle B, this is angle C. It means this is hypotenuse, this is base, and this is perpendicular. Okay? What is the value of sin A? Sin A is perpendicular upon hypotenuse. What is the perpendicular? BC. Hypotenuse AC. The value of sin A is BC upon AC. And here is cos A. What is the value of cos?
cos is called base upon hypotenuse. What is the base? Base upon hypotenuse. What is the base? Base is AB. And what is the hypotenuse? Hypotenuse is AC. If we prove sin square A plus cos square A equals to 1, identity will be proved. यदि हम sin स्क्वायर A की वैल्यू और sin स्क्वायर cos स्क्वायर A की दोनों का एडिशन हम 1 के इक्वल प्रूव कर देते हैं, तो आइडेंटिटी प्रूव हो गई. यही करना है. देखिए, वैल्यू ऑफ sin A BC अपॉन AC. यदि स्क्वायर इज गिवन प्लस cos A AB अपॉन AC. यदि ये A के 1 के इक्वल आ जाता है तो BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर. यू कैन टेक एज LCM AC square. Same values we will find BC square. Same values we will find AB square. Now see this value. BC square, this is perpendicular square. AB square, this is base square. When we add the squares of base and perpendicular, we will find hypotenuse square. This is equals to AC square in numerator and denominator is already there. AC square, we will find 1. This is your proof of first identity. Okay. Now we find two small conclusions from this identity. Very useful conclusions. This is our first identity equals to 1. Our first conclusion is, if we put sin square A in left side, we have to transfer cos square A into right side. 1 minus cos square. यदि हम sin square A को यहीं रखते हैं तो हमें इस cos square A को उस साइड में डालना पड़ेगा, तो ये हुआ 1 minus cos square A. This is the value of sin square A in terms of cos. You can write in this way also. See, are you get it? If we remove this square, we have to put स्क्वायर रूट साइन ऑन द राइट साइड. हमें राइट साइड में स्क्वायर रूट का साइन लगाना पड़ेगा. दिस इज आवर फर्स्ट कंक्लूजन. दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ कोस स्क्वायर ए. दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन ए इन टर्म्स ऑफ कोस ए. कोस ए की टर्म्स में ये वैल्यू साइन ए. दिस इज द most useful conclusion. Similarly, we can find second conclusion. If we put cos square A in this side, means left side, we have to transfer sin square A on right side. 1 minus sin square A. Similarly, we have to remove cos this square sin square. We have to put
अंडर रूट साइन, हमें अंडर रूट का साइन लगाना पड़ेगा। This is our first identity. These are useful conclusions of this identity. These conclusions gives value of sin A in terms of cos A. This conclusion gives value of cos A in terms of sin A. sin के terms में, लेकिन 1 माइनस है, ध्यान रखना। और अगर स्क्वायर लिखते हैं दोनों साइड में तो अंडर रूट के साइन की जरूरत नहीं होती। एक साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो अंडर रूट के साइन की जरूरत पड़ेगी आपको। याद रखना, ये अंडर रूट का साइन इस स्क्वायर से कटेगा नहीं, फ्री नहीं है ये नंबर। ये नंबर अलग है और ये नंबर अलग है, बीच में माइनस का साइन है। दिस इज योर फर्स्ट आइडेंटिटी। This is very useful to prove some questions. State and prove. Our second identity is sec square A equals to 1 plus tan square A. Proof of this identity is very simple. You have to write 1 plus tan square A equals to sec square A. Both sides are true. If we go left to right or right to left. Make a right angle triangle. This is A. This is a right angle B, C. We have to find value of tan A. This is hypotenuse, base and perpendicular. Okay. Tan A equals to perpendicular upon base. BC upon AB. In left hand side, 1 plus tan square A. Tan square A means BC square upon AB square. Take the LCM AB square plus BC square. AB square plus BC square gives hypotenuse square means AC square upon AB square. This is AC means hypotenuse square upon AB means base square. What is the H upon B? H upon B is called sec. And squares are already there, sec square A. So we can say 1 plus tan square A equals to sec square A. There is no need to learn this proof. आपको इस प्रूफ को सीखने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रख सकते हैं आपको इसी को ही लर्न करना है। ये आइडेंटिटी या तो ये वाली फॉर्म या ये वाली फॉर्म, लेकिन उसका बायोडेटा आपने को जब पूरा याद होता है, ध्यान होता है कि आया कहां से, तो कहीं ना कहीं स्ट्राइक होता है माइंड में कि ये वहां से आया था। तो बेस अपने को पूरा क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट अपने को पूरा क्लियर होना चाहिए। है राइट एंगल ट्रायंगल से ही जनरेट हुए हैं सारे। ये कुछ रिलेशंस हैं। दिस इज द रिलेशन बिटवीन tan and sec. You can say this is the relation. This is the identity. First was relation between sine and cos. Second is 1 plus tan square A equals to sec square A. This is the second relation. We can find some more conclusions from this or this. देखिए, if we transfer side tan square A on right side, we will find sec square A minus tan square A. This is one.
वहां देखो फर्स्ट आइडेंटिटी में दोनों का एडिशन साइन और कोस का प्लस हो रहा है, स्क्वायर्स भी हैं। यहाँ सेक स्क्वायर ए में से टेन स्क्वायर ए माइनस कर दिया, दोनों स्क्वायर्स हैं, माइनस है तो इक्वल्स टू 1 हो रहा है। एक कंक्लूजन और बनता है कि यदि हम टेन स्क्वायर ए को उधर नहीं ले जाएं, 1 को ले जाएं, तो हमारा कंक्लूजन एक और तैयार हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 गिव्स टेन स्क्वायर ए। ये सारे जो कंक्लूजन्स छोटे छोटे निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे एक्सरसाइज नंबर 8.4 के जो क्वेश्चंस हैं उनमें ये कहीं ना कहीं काम आते हैं, छोटे छोटे। इसके जो दोनों कंक्लूजन्स है वो बहुत ज्यादा काम आते हैं। इसमें साइन स्क्वायर ए को हमने यहीं रखा था और कोस को उधर ले गए थे, फिर कोस को यहीं रखा था और साइन स्क्वायर ए को उधर ले गए थे, राइट साइड में माइनस करके, साइड चेंज करके ले गए थे ना। ऐसे ही एक कंक्लूजन इसका बहुत ज्यादा काम आता है, ये टेन स्क्वायर ए को इधर डाल दिया माइनस करके, ये 1 इधर रह गया। तो कहीं अगर साइन सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए नजर आता है अपने को क्वेश्चंस में, जब हम क्वेश्चंस के ऊपर वर्क करेंगे तो 1 लिख सकते हैं, वहां पर डायरेक्ट रिप्लेस कर सकते हैं। और अगर ये नजर आ जाए कहीं भी क्वेश्चंस में इक्वल्स टू 1, दिस क्वांटिटी रिप्लेस्ड बाय 1। कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी होता है कि 1 है और पूरा क्वेश्चन सेक और 10 में चल रहा है, तो 1 की जगह पर हमें ये पुट करना पड़ेगा, पूरा रिप्लेस करना पड़ेगा। एक आइडेंटिटी और है, उसको भी देख लेते हैं, और उसका भी प्रूफ ऐसे ही राइट एंगल ट्रायंगल की तरह है। राइट एंगल ट्रायंगल से उसको भी प्रूव कर सकते हैं। थर्ड आइडेंटिटी, दैट इज 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये कोट और सेक का रिलेशन है, कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। इसमें से भी हम दो कंक्लूजन निकालते हैं। कोट स्क्वायर ए को राइट साइड में डाल दिया तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 यहीं छोड़ दिया। और एक कंक्लूजन और है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 गिव्स कोट स्क्वायर ए। इसका ये थर्ड वाली में ये फर्स्ट कंक्लूजन है, ये सेकंड कंक्लूजन है। इसके कंक्लूजन 1 और 2 लिख दिए थे। इसका एक कंक्लूजन ये था, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, मतलब टेन स्क्वायर ए को उधर ले गए। और एक सेकंड कंक्लूजन था, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए। This is your first identity, this is second identity, and this is third identity. These are small conclusions, small formulas. बहुत ज्यादा काम आने वाले में इसके दोनों कंक्लूजन बहुत ज्यादा काम आते हैं। ये खुद भी बहुत ज्यादा आता है, ये भी बहुत ज्यादा काम आता है, ये भी कभी कभार आ जाता है, ये कम आता है, ये बहुत ज्यादा काम आता है, ये भी, और ये कंक्लूजन भी काम आता है, ये रेयर में कभी कभार किसी क्वेश्चन में काम आता है, लेकिन अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ और हैं छोटे छोटे रिलेशंस, इसको भी हम ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल से प्रूव कर सकते थे, थर्ड वाली आइडेंटिटी को। सबसे जो लास्ट में आते हैं कुछ छोटे छोटे कंक्लूजन्स, वो आप जानते ही हो, साइन ए अपॉन कोस ए, राइट एंगल ट्रायंगल से वी कैन इजीली प्रूव। एक तो ये वाला, मतलब थर्ड के बाद फोर्थ कंक्लूजन ले लीजिए। फिफ्थ कंक्लूजन भी आप जानते हो, कोट ए अगर कहीं आ जाए तो कोस ए अपॉन साइन ए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो जब टेन साइन ए अपॉन कोस ए होता है तो कोट क्या होगा, कोस ए अपॉन साइन ए होगा। ये कोट का जो टर्म्स है वो साइन और कोस के टर्म्स में है, और ये टेन जो है वो साइन और कोस के टर्म्स में लिख सकते हैं इसे। सिक्स्थ फॉर्मूला है कोसेक ए, बहुत ज्यादा काम आता है ये भी,
और ये आप जानते हो कि कोसेक और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल का जो मैथमेटिकल मीनिंग है वो यही है। हम कहते हैं रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब एक दूसरे से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वो ऐसे लिख सकते हैं उनको। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ रेसिप्रोकल। साइन एंड कोस आर रेसिप्रोकल ईच अदर। दिस इज द रेसिप्रोकल फॉर्म जो आप पहले से जानते हो। ऐसे ही रेसिप्रोकल सेक और कौन है, कोस है, तो उनको भी मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देंगे, ये रेसिप्रोकल। अगर कोस बाहर निकालना पड़े तो सेक इधर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। देखो ऐसे, अगर आप साइन को लिख रहे हैं रेसिप्रोकल में कोसेक के, तो ऐसे लिख सकते हैं, ये भी रेसिप्रोकल फॉर्म है, लेकिन ये बहुत ज्यादा काम आता है, इसलिए ऐसा रेयर में आएगा, ऐसा बहुत ज्यादा काम आएगा ये। एक और है, वो है किसका बच गया अब, tan का। tan a इक्वल्स टू 1/cot a, या इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं cot a इक्वल्स टू 1/tan a। ये रेसिप्रोकल फॉर्म, ये साइन और कोस में है, ये आपस में ही आप रेसिप्रोकल जो कहते हैं ना वो है। इसके क्वेश्चंस को देखते हैं नेक्स्ट लेसन में। आज इनको ढंग से, सही ढंग से आप नोट्स बना लेना इनके, और ये कैसे कैसे आपस में रिलेशन है थोड़ा ध्यान रखना इनको।